کرنی ہے، آخرت دی تیاری کرنی ہے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، قربان بنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو مخاطب کر کے فرمائے سی، اے زمین آج تو گواہی نے میرا بندہ، تیرے ہوتے زندگی گزرے رہ گئے، چلتا رہ گئے، پھرتا رہ گئے، کھاندا رہ گئے، پیندا رہ گئے، اے زمین میرا بندہ کہڑے اچھا عمل کریں رہ گئے، اے زمین اے تیرے سامنے آ میرا بندہ کہ میں میری نافرمانی کریں رہ گئے، کہ میں فرما بردار رہ گئے۔ توجہ اس زمین عرض کریں دی اے مالک مولا تائیں تم گواہی کرنی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب يوم القيامة وقنا عذاب الميزان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الہ العالمین تمام جملہ کلام پاک سواب الہ العالمین تمام ختم شریف سواب تمام جملہ کلام پاک سواب حضور کی ثنا خوانی سواب ذکر اذکار سواب حضور بنور شاف یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدس میں اوفتا ہدیتا عقیدتا نذرانتا پیش کرنے ہیں اے اللہ قبول منظور فرما الہ العالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفعہ تمام انبیاء کرام تمام ازواج مطہرات شہیدان کربلا تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین حضرت آدم علیہ السلام کا دن کے آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات بڑے چھوٹے اور مرد وفات پا چکے ہیں الہ العالمین تمام درود کو تجھے ہیں اے اللہ قبول منظور فرما اللہ آمین الہ العالمین خصوصاً حاضرین سے جتنے ہی خاندان دے وچوں رحلت کر چکے ہیں اور میرے والد محترم الہ العالمین تمام درود کو تجھے ہیں اے اللہ قبول منظور فرما اللہ مولا کریم تمام دی بخشش فرما اللہ مولا تمام دی مغفرت فرما اللہ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص مالک مولا تمام جملہ کلام پاک سواب جو کلام پاک تحریر ہوئے اور جنہوں نے بالخصوص بھیجا ہے الہ العالمین شہدہ سسٹر صاحبہ ایک قرآن پاک ختم شریف امریکہ تو اور اماں جی ملتان چوں انہوں نے درود شریف اور کئی مرتبہ پڑھے انہوں نے بھیجے الہ العالمین لا تعداد مرتبہ کلمہ شریف جو پڑھے گئے جو تحریر ہوئے الہ العالمین کلمہ شریف سواب اور بھی ختم شریف سواب جو اماں حضور نے بھیجے اور 52 مرتبہ سورت یاسین شریف پر سواب اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھن سواب الہ العالمین ذکر اذکار سواب تمام خیرات سواب تمام فروض سواب الہ العالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل خصوصاً مالک مولا امیر محمد صاحب روح کو پہنچے نہیں اے اللہ قبول منظور اللہ آمین الہ العالمین امیر محمد صاحب دی بخشش فرما اللہ مالک مولا انہاں دی مغفرت فرما اللہ مالک انہاں دے تمام درجات بلند فرما اللہ انہاں دی قبر کو منور و روشن فرما اللہ مالک انہاں کو مقام علیین عطا فرما اللہ الہ العالمین بھائی محمد صدیق چشتی صاحب دے خاندان سے جتنے ہی رحمت کر چکے ہیں مولا سب دی بخشش فرما اللہ مولا کریم تمام دی مغفرت فرما اللہ اور انہاں دے والد محترم دی مغفرت فرما اللہ مالک انہاں دے تمام درجات بلند فرما اللہ انہاں دی قبر کو منور و روشن فرما اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما اللہ آمین الہ العالمین ہم سب کو دین دے نال محبت نصیب فرما اللہ الہ العالمین دین دے اندر استقامت عطا فرما اللہ نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ آمین قرآن پاک پڑھن دی قرآن پاک تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ آمین یا الہی بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا اللہ پر بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا مولا جس کسی نے دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان بنی فاطمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول مولا ہم سب کو ولی اللہ دی محبت نصیب فرما شاہ اشرف بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ توسل دنال اس محلے کو آباد و شاد فرما اور ای مدرسے کو ادارے کو آباد و شاد فرما اللہ یا الہی جب وقت اخیر ہوئے سامنے چہرہ سراجن منیر ہوئے سری زبان تے یہی تقریر ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
बारिश जी आ रही है और ख़त्म शरीफ का जो प्रोग्राम था ख़त्म शरीफ हो चुका है और बारिश की ये पोजीशन है। तो सामान जो है इकट्ठा कर लेते हैं। सुगरा बेटा आप भी आ जाओ साथ। और मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया है। पहले तेज़ बारिश आती रही है काफ़ी, अब कुछ कम हो गई है क्योंकि जैसे ही हमारा ख़त्म शरीफ ख़त्म हुआ है, कुल शरीफ हो गए हैं, उसके फ़ौरन बाद ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी जी। सामान का सारा सेटिंग जो है कर लेते हैं। अल्लाह पाक जी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितनी हमारी हैसियत थी, जिन्होंने हिस्सा दिया रिश्तेदारों ने, अल्लाह पाक उनका कबूल करे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दादा अब्बू का ख़त्म शरीफ हो चुका है और जैसे ही हमने वो छोटी सी वीडियो घर के लिए बनाई थी, लेकिन बहन भाई पूछ रहे थे तो वो वीडियो लगाई। उसके बाद जो बहन भाइयों ने हमें कलाम पाक पढ़कर भेजी है, हम सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम इतना नहीं पढ़ सके भाग दौड़ में, लेकिन अल्लाह मेरी बहन भाइयों को सलामत रखे जिन्होंने जो कलाम पाक पढ़ के मेरे पास भेजा है। और भेजने वालों में नाम जो मुझे अब याद हैं, शायद आप ही हैं अमेरिका से, एक कुरान पाक भेजा है साले सवाब अम्मा जी मुल्तान वाली नासिर भाई की वालदा मुहर्रमा, 20 कुरान पाक, 52 सूरत यासीन, 5000 दुरूद पाक माशाल्लाह उन्होंने भेजा है। हमजा बेटा हांगकांग से 3 मरतबा सूरत यासीन भेजी है। और लंदन से फातिमा सिस्टर हैं, अभी उनकी कॉल आई थी, उन्होंने भी कुछ कलाम पाक भेजे हैं। और लातादात जो बहन भाई पढ़ रहे हैं, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपकी कोई अजीज़ कारम में कोई वफ़ात पा गया। अल्लाह पाक इस कलाम पाक जो है ये इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन हम जब ख़त्म शरीफ कराएंगे, जो शामिल हो गया है वो भी, और ये सब जुमेरात वाले दिन इंशाल्लाह हम ये उनके मिल फरमा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस दुख की घड़ी में शामिल हुए, हम सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और 19 तारीख सुबह का टाइम था, तकरीबन हम उठ जाते हैं सुबह ही, गांव के जो लोग होते हैं। उस दिन मैं बहुत ही खुश था क्योंकि उस दिन अल्लाह पाक ने मेरे से एक ऐसी नेकी करवाई कि मेरी ज़िंदगी में भी वो सोच में नहीं था कि भाई मेरे से ये काम अल्लाह पाक करवाएगा। और एक रिक्वेस्ट और मैं करूँगा, एक अभी हमारी बहन आई थी ताज़ियत के लिए, उनकी बच्ची माजूर है, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है। अगर कोई बहन भाई, मैं हालांकि इतनी तकलीफ़ में हूँ लेकिन मुझसे किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई व्हील चेयर बहन भाई ले के देना चाहे तो आप प्लीज़ उनके लिए सोचिएगा। माजूर बच्ची हैं, चल नहीं सकती, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर कुछ कीजिएगा कि उनकी बच्ची के जो व्हील चेयर का मसला है वो हल हो जाए।
उस दिन मैं बहुत ही खुश था। मैं 10 बजे घर से निकला, बारिश आ रही थी विलेज में, मौसम ठंडा हुआ था, इतवार का दिन था। अल्लाह पाक ने ऐसा मेरे से नेक काम कराया है, जिस हाथ से मैं अपने घर के लिए मांगता था, उस गुनाहगार हाथों से एक यतीम बच्ची का मैं सामान लेने के लिए बाज़ार गया हुआ था। ये कुछ रसीदें भी मेरे पास हैं, अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो ये दिखा सकता है कि 19 तारीख 6वां महीना 2022। नंबर मैंने इसलिए काटा है कि क्योंकि ये मकामी नंबर है, कोई प्रमोशन के लिए नंबर नहीं होता। और यहाँ पे भी 19 जून लिखा हुआ है, हाशमी इलेक्ट्रॉनिक्स लिया में से। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 रुपये का मैंने ये जो यतीम बच्ची का सामान था जहेज़ का लिया है। तो बड़ा खुश था मैं, एक अल्लाह पाक ने नेक काम मुझसे करवाया है गुनाहगार हाथों से। अब इस बच्ची का कुछ सामान रहता है। मैंने उनको कहा था कि अल्लाह ने अगर मुझे हिम्मत दी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बहन भाई को। इन सब को मेरे चैनल का नहीं पता, ये तो एक बहन के आगे बात चली तो उन्होंने कहा भाई मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो आप मेरा हिस्सा, ये मेरी नेकी ज़ाया ना करने दें, बल्कि आप ये पैसे लें और उस बच्ची के लिए सामान जो मेरा हिस्सा है आप ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 का सामान तकरीबन लेकर मैं आया और 2-2:30 बजे का टाइम था। जैसे रूटीन होती है दोपहर की खाने पीने की, इसी तरह शुक्रिया ने कहा मैं खाना के लिए लाती हूँ। चावल पड़े थे, पता नहीं रात के बने हुए थे या सुबह के, मुझे याद नहीं है। वही इसने गर्म करके दिए। कुछ आम पड़ा था, उसका जूस बनाया। वो पहला घूंट ही मैंने भरा। और क्योंकि हम इस कमरे में, कच्चे कमरे में होते हैं, दादा बू उस कमरे में थे, खाना खा रहे थे हम। तो उधर छोटा भाई था, पता नहीं कौन था, उन्होंने कहा कि दादा बू की तबीयत ख़राब है। वो पहला घूंट मेरे अंदर गया है, दूसरा घूंट अंदर नहीं गया। और जब देखा तो मैंने अपने रिश्तेदारों को, जो मेरी फुफ्फो जी हैं और चाचू जी हैं, मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि आप पहुंच जाएं। वो भी पहुंच गए थे। लेकिन ये है कि जब हमारे वालिद साहब फौत हुए, मुझे उस टाइम इतना समझ नहीं थी और मैं 6वीं जमात में, 6ठी जमात 6 क्लास में पढ़ता था और हमें इतना नहीं पता था। लेकिन जो मेरे वालिद दादाजी थे, उनकी डेथ मेरी झोली में हुई। तो आप यकीन करें, इतना रोए हम, इतना रोए कि हमें ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मेरा जानता है। और उसके बाद जब दादा अब्बू की डेथ हो गई, फिर सारे अजीज़ कारब जो थे पहुंच गए। अब यही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक दादा अब्बू के कब्र के मनाजिल आसान फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। और जो मुसलमान बहन भाई दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी भी बख्शिश फरमाए। सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जो कलाम पाक मेरे पास पढ़ के मेरे बहन भाइयों ने मेरे पास भेजी है, मैं हाथ जोड़कर उनका दिल से माज़रत करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इतना दे, इतना दे। अल्लाह पाक आपको किसी का मुताज ना करे। मुझे रोना तो आता है, क्योंकि जब मैं दोपहर मैंने थोड़ी देर आराम किया, सब जब घर में थे इतना महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब मैं आधा घंटे के लिए आंख मेरी लगी, जब मैं उठा, दादा की चरपाई देखी ना, वो खाली नज़र आई मुझे। दादा अब्बू इंडिया में छछरौली में पैदा हुए और जब मुल्क पाकिस्तान बना तो 18 साल की उम्र थी। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी आपने, और कुछ कमी बेशी हमारी खिदमत में रह गई हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। और दादा अब्बू के फौत होने के बाद मेरी अब अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अब अगर मौत आए, सब मुसलमान बहन भाइयों ने मर जाना है, लेकिन मैं इतने दुखों का मारा हूँ, इतना दुखों का मारा हूँ, मेरे पे तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त होती। मैंने अल्लाह पाक से दुआ की आज, मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे और किसी को मरना नहीं देखना, बस अब जब भी बारी आए तो अल्लाह पाक मेरी आए, बस यही अल्लाह पाक से आज दुआ की है। मेरे से और दुख तकलीफ़ें नहीं देखी जाती, लेकिन दिलों के राज अल्लाह पाक जानता है। और क्योंकि चैनल पे काम करना हमारी मजबूरी है,
जाने वाला जो है वो चला गया, और बहुत सारी यादें जो मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया है, 1.5 साल पहले की एक क्लिप है, वो अपनी यादें छोड़ गया है बाबा जी। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो मुझसे नेक काम करवा रहा है, अल्लाह पाक इसी तरह मुझे साहिब कदम रखे। और एक बार फिर सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब जो अल्फाज हैं मेरे पास ख़त्म हो गए हैं। मैं किस अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपने मुझे सपोर्ट किया, और आपने उम्मीद है इसी तरह हमें और मेरी फैमिली को सपोर्ट करता रहना है। हम इंशाअल्लाह आपके लिए हमेशा दुआ करेंगे, हम आपके एहसान मंद रहेंगे। हम आपका ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकते। आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारी वीडियो देखते हैं, और अगर किसी की मेरी वजह से या मेरी फैमिली की वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।